Good morning, all of you. Today we will start our second lecture, Fundamentals of Partnership, Basic Theory. Today we will discuss the following topics: concept of limited liability partnership, difference between ordinary partnership and limited liability partnership, rights of a partner, meaning of profit and loss appropriation account and its format, journal entries of profit and loss appropriation account, difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account, concept of charge against profit and appropriation of profit, and difference between charge against profit and appropriation of profit, some problems and their solution. These are the topics which we will discuss today in this video. Limited liability partnership. Limited liability partnership in India came into existence with the enactment of Limited Liability Partnership Act 2008. It means a partnership formed and registered under this act. इसका मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग हुआ. इसमें जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग कराना होता है. नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. ये इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होते हैं. इट इज़ ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स. इट हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन. ये सारा आप 11th क्लास में पढ़ के भी आए हैं कुछ टॉपिक्स इसके. एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLP shall not affect the existence, rights or liabilities of the LLP. अगर कोई भी चेंज होता है पार्टनर्स में तो उसका इफेक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर नहीं होता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to LLP. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. बेटा जो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है विच इज़ क्रिएटेड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट का केवल एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. उसके अलावा इसका आपके किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई यूज नहीं है. तो डिफरेंस इसमें क्या है? एप्लीकेबल लॉ. कौन सा लॉ इसमें अप्लाई होता है? इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड एंड इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप the Limited Liability Partnership Act 2008 will be applicable. Number 2 is registration. As we have already discussed in partnership that its registration is optional, but for limited liability partnership its registration is compulsory. Creation. Ordinary partnership created by an agreement which can be in oral or in written, and limited liability partnership
created by the law. Body corporate, in ordinary partnership, body corporate cannot become a partner, but in limited liability partnership, body corporate can be a partner. Next point is number of partners. In ordinary partnership, we have already discussed that minimum 2 partners are required and the maximum number of partners are 50. But in limited liability partnership, minimum 2 partners are required and there is no maximum limit of partners. Last point is liability. As we have already discussed about this, that in ordinary partnership, the liability of the partners are unlimited. But in limited liability partnership, liability to the extent of their contribution. It is limited to the extent of their contribution. जितना भी उन्होंने contribution किया है उसके ही अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी डिसाइड होगी. नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ ए पार्टनर. जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में बनता है या जो भी पार्टनर्स आते हैं उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं काम करने के लिए. क्या क्या राइट्स होते हैं उनके? फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस विद other partners in the agreed ratio. As we have already discussed about that in partnership deed it will be mentioned that what will be the profit sharing ratio between the partners, and it is necessary and it is the right of a partner that he will share profit or losses with other partners in their agreed profit sharing ratio. Number 2, right to take part in the conduct of the business. Next is right to consult in the matters related to partnership business. वो कंसल्ट कर सकता है कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें. फोर्थ पॉइंट इज he has a right to have a copy of the books of account. Books of accounts means ledger or financial statements are the books of accounts of a partnership firm. So every partner has a right to have a copy of the books of accounts. Next is a partner has a right to disallow the admission of a new partner. We have already discussed in their last class that a new partner cannot be admitted without the consent of all the partners. So here we can say that a partner has a right to disallow the admission of a new partner. Next is every partner is the joint owner of the partnership property. जो भी property है partnership की उसके वो joint owner होते हैं. If a partner has given loan to the firm, so he has the right to receive the interest on loan at an agreed rate. If rate of interest is not agreed, it is paid at the rate 6% per annum. We have already discussed about that. If there is no deed, in that situation, interest on partner's loan will be allowed at the rate of 6% per annum. Next point is if any partner incurs expenses or make any payment on behalf of the firm, he has a right to be indemnified by the firm. अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंसेस पे किया है फर्म के बिहाफ पर, इन दैट सिचुएशन वो पार्टनर को राइट है उस अमाउंट को लेने का फर्म से जो उसने फर्म के बिहाफ पर पे किया है. नेक्स्ट इज ए पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस. अगर कोई पार्टनर है उसकी एज ज़्यादा है या कोई पार्टनर है
जिसको हेल्थ इश्यूज हैं, वो कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता. इन दैट सिचुएशन ही विल हैव टू गिव ए प्रॉपर नोटिस टू द फर्म दैट ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म नाउ. नाउ मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इन दिस चैप्टर lots of questions you will do, and in each and every question you will prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. ये एक extension है profit and loss account का, that is prepared to distribute the net profit among the partners. ये बनाया जाता है किस लिए? जो नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स, जितनी भी एडजस्टमेंट हैं पार्टनर से रिलेटेड, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस. जितनी भी एडजस्टमेंट है, वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, partner salary or commission, will be recorded in this account. This is the format of profit and loss appropriation account. First of all, debit and credit दो साइड होती है. You have already prepared the profit and loss account. This is the same as profit and loss account, but it is prepared after the completion of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट तब बनता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं. ये उससे पहले नहीं बन सकता. सबसे पहले हम क्रेडिट के आइटम डिस्कस करेंगे. आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कैलकुलेट किया, आपका वहां पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया. दैट नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन क्रेडिट साइड बाय द नेम ऑफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितना भी नेट प्रॉफिट वहां पर आया था उसको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे. इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ एनी पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज, द फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर्स, and that amount which the firm will charge is called interest on drawings, and that is the income of the firm. So every income will be credited in profit and loss appropriation account. So by interest on drawings A B. इसके बाद डेबिट साइड डिस्कस करेंगे. पहले सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और वहां पर आपका लॉस कैलकुलेट हुआ था, उस लॉस को डेबिट में लिखेंगे. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट द कैपिटल in partnership firm. If the deed allowed, in that situation the partners will get interest on their capital. This is the expenses of the firm and it will be debited in profit and loss appropriation account. Next item is to partners salary. If deed allowed, that a partner will, if deed allowed, that a partner will get salary from the firm
that is also an appropriation. It will also be shown in debit side of profit and loss appropriation account, same as two partners commission. It will also be debited. अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट और 20% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर द फ्यूचर, तो इन दैट सिचुएशन 20% ऑन 10% वाट एवर इज गिवन दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, एंड इसको भी हम डेबिट साइड में टू रिजर्व के नाम से शो करेंगे. आफ्टर दैट अकाउंट का टोटल होगा. इफ क्रेडिट साइड is excess, then the debit side, it is called profit and it will be transferred to capital account or current account of the partners. Like to profit transfer to capital oblique current account. यहाँ पर capital oblique current account इसका मीनिंग नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको केवल अभी इतना ही समझना है कि यहाँ पर कैपिटल या करंट दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा, और जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और अगर लॉस निकल के आता है इन दैट सिचुएशन लॉस विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय द नेम ऑफ बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ए बी in their profit sharing ratio. Next is features of profit and loss appropriation account. What are the features? It is prepared just after the profit and loss account. ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी बताया मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके होते हैं, यानी हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं. सेकेंड इज इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म. पहली चीज ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म ओनली. यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन 11th स्टैंडर्ड. आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं 11th स्टैंडर्ड में, और उसमें आपने केवल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था. आपको ध्यान होगा उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया था. नेक्स्ट इज इट इज ए नॉमिनल अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इन दिस अकाउंट वी ओनली डिस्कस द expenses and losses, income and gain. और हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में what are the rule of nominal account. Next is it shows how the net profit for the accounting period is appropriated. Appropriated means distributed among the partner. ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड का जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस जो भी हुआ है वो पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा बोर्ड के एग्जामिनेशन में या तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा या आपसे कहा जाएगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. जो आपसे कहा गया है आपको वो करना होगा. अगर आपसे पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, आपने जर्नल एंट्री बनाई, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज? देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहला काम होता है कि जो प्रॉफिट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो हम जर्नल एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हमारे पास प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो लॉस की कंडीशन में इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे. एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट, एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी। दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस दिया हुआ होगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। इसके लिए दो एंट्रीज हम बनाते हैं। सबसे पहले द फर्म अलाउड इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। जब अलाउ करते हैं तो हम एंट्री लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये डिस्कस आगे करेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होता है। उसके बाद जब हम इसको क्लोज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो हम एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री आपको पास करनी है। नेक्स्ट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है पार्टनर से क्योंकि वो उसकी इनकम है। तो एंट्री लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और जब उसको क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा क्योंकि ये हमारी फर्म की इनकम है। वैसे ही सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर। सैलरी और कमीशन एक पार्टनर को मिलता है, फर्म पे करती है, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है। हम यह अकाउंट जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, हमें अकाउंट बनाना है, फर्म का अकाउंट बनाना है। फर्म के लिए इनकम या एक्सपेंसेस देखना है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। सबसे पहले अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, तो एंट्री लिखेंगे पार्टनर सैलरी और कमीशन जो भी दिया गया है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और जब उसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो दोनों में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, इट मीन्स ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस। इसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10% और 5% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और उसके बाद क्वेश्चन में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो अमाउंट बचेगा उसे प्रॉफिट बोलेंगे, और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जो भी प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट जो भी होगा वो उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर लॉस होता है तो एंट्री इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले आता है बेसिस का स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ये कब बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कहा गया इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, ये आप 11th में बना करके आए हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है, ठीक, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू एसरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और उनका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। नेक्स्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए
आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जितने भी आइटम्स उसमें शो करते हैं दे आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या कहा गया, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये बनाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। और जब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो हमेशा पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही बनता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज चार्ज होती है और क्या एप्रोप्रिएशन है। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर, कोई भी अमाउंट है जो पार्टनर को पे करनी है, सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर। दो आइटम ऐसे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल जो भी पार्टनर्स को है, इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ए चार्ज। जितने भी आइटम पार्टनर्स को दिए जाते हैं, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर, दो आइटम्स को छोड़ करके बाकी सभी आइटम्स वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हेंस दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स की जो सैलरी है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो कर सकते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या बेसिस है, नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे बात करें, इट शोज एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसमें वो आइटम शो करते हैं जो नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं, केवल वो आइटम डिडक्ट होते हैं। इसमें इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट प्रॉफिट्स का वेरियस हेड्स में। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिकॉर्डिंग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होती है, इसमें रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है। नेक्स्ट इज नेसेसरी और नॉट। ये कहते हैं नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। अगर लॉस भी हो रहा है उस कंडीशन में भी चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर लॉस हो गया तो हम एक्सपेंसेस को दिखाना बंद कर देंगे, हम एक्सपेंसेस को कंटिन्यू दिखाएंगे। इसमें आता है इट इज मेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। आगे ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, आगे हमारे सामने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में ये चीज़ें आएंगी कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस हो रहा है तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, केवल वो प्रॉफिट की कंडीशन में ही दिया जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू ए पार्टनर। ये ऐसे आइटम हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। और एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। Some problems relating to these topics will also discuss today. Number one is, in what way would you deal with rent paid to a partner for the use of his premises by the firm in which he is a partner and why? वो कहता है in what way, किस वे में आप डील करेंगे कि एक पार्टनर जो है उसकी जो प्रेमाइसिस है फर्म उसको यूज़ कर रही है तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
तो आंसर होता है रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ए यूजुअली बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्स टुवर्ड्स यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी का कोई यूज किया है तो आपको उस एक्सपेंसेस का फर्म पेमेंट देगी। इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, हैंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, ये किसी पार्टनर को पे नहीं कर रहे, फर्म पे कर रही है, क्योंकि फर्म ने अपने यूज के लिए उस पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, एज ए रेंट लिया है, तो उसका पेमेंट वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रदीप एंड संदीप आर रनिंग ए फास्ट फूड सेंटर। प्रदीप और संदीप दो पार्टनर हैं, एक फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं बाय द नेम ऑफ बर्गर किंग। उनका नाम है उनके फास्ट फूड सेंटर का बर्गर किंग। प्रदीप ऑन हिज ऑन स्टार्टेड अनदर फास्ट फूड आउटलेट। प्रदीप ने अपना एक अलग से एक फास्ट फूड सेंटर का आउटलेट और शुरू कर लिया बर्गर किंग के नाम से ही, विद हिज ऑन कैपिटल, अपनी खुद की कैपिटल लगा के। ही अर्नड इंडिविजुअली ₹50,000 फ्रॉम दिस बिजनेस, और उसने अपने अकेले ही ₹50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। स्टेट वेदर प्रदीप इज लाइबल टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म। क्या प्रदीप उस ₹50,000 के प्रॉफिट को रिटर्न करेगा? आंसर इज ए पार्टनर इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ for setting up a rival business and competes with the business of the firm। कोई भी पार्टनर अपना लॉ से अलग चल के उसी तरह का कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। with the business of the firm without the consent or knowledge of his co-partner। अपने साथी जो पार्टनर हैं बिना उनकी नॉलेज में डाले। एज ही वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, जैसा उसने कहा कि उसने जो वायलेशन किया है लॉ का, यानी उसने जो कानून है लॉ है उसको तोड़ा है। ही इज लाइबल टू पे ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम टू द फर्म। इस सिचुएशन में जितना भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म को रिटर्न करेगा। इन दिस केस प्रदीप लाइबल टू रिटर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹50,000। इस सिचुएशन में प्रॉफिट जितना भी प्रदीप ने लिया है ₹50,000 का, वो उसको फर्म को वापस करना होगा। नेक्स्ट इज इट मैंडेटरी अंडर लॉ फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या अकॉर्डिंग टू लॉ ये मैंडेटरी है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म को बनाना होगा? आंसर इज इट इज प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटा जाता है, तो उसको शो करना होता है। दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, तो ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू शो सैलरी पेबल टू स्टाफ एंड सैलरी पेबल टू पार्टनर? गिव आंसर विद रीजन। सैलरी आपने अपने स्टाफ को पे की और सैलरी जो आप अपने पार्टनर को पे करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्यों? आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, सैलरी पेबल टू स्टाफ आप लिखते थे दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमारा एक्सपेंसेस है। देयरफॉर इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, whereas salary payable to partner is an appropriation of profit, therefore it appears on the debit side of profit and loss appropriation account. Thank you. This is our second lecture on the topic fundamentals of partnership, basic theory. In next class
we will complete our theory part of chapter 1. After that, we will give you the video lecture of each and every variety of questions with their solution. Thank you. Have a nice day.